Hi everyone, welcome to MB Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDI practice series. So today we have a DI based set from CAT 2018, right? Simple set hai, calculation involved hai, right? Let's first understand this, and as always, first pause this video, try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right now, let's get down to solving this particular set. So, what does this say? There are only four brands of entry-level smartphones called Asra, ByC, CXQI, and AIPQ, random names in a country. Uh, and these are the only four brands. That is also important. Details about their market share, unit selling price, and profitability. And how do we define profitability? Defined as the profit as a percentage of the revenue, right? Now, for the year 2016 are given in the table below. Now, we'll have to understand this table. There are four brands. ये market share दिया हुआ है. Now, ये market share किसके terms में होगा? Because यहाँ पे notice करो unit selling price actually given है. So, this market share is actually in terms of the number of units sold, right? So let's say there are 100 units of smartphones sold. So Azra brand के 40 smartphones है, ByC के 25, CXQI के 15 and DI PQ के कितने हैं 20. Obviously that total number I just assume to be 100. Suppose that total number is X. So total number of smartphones sold would be 40% of X, 0.4X, 0.25X, 0.15X and 0.2X. So that is the number of smartphones respective. And then column 2 में क्या दिया हुआ है यूनिट सेलिंग प्राइस. सो ये पर स्मार्टफोन का सेलिंग प्राइस है. सो एक्चुअली if I actually multiply this, so सबसे पहले जैसे अगर इसका number of units sold निकालो, so that is 40% of x, so that is let's say 0.4x. यहाँ कितना है लिख लेते हैं 0.25x. यहाँ कितना आएगा 0.15x और यहाँ कितना आएगा 0.2x. So if I actually multiply this 0.4x by 15,000, that will actually give me the total revenue, right? That will actually give me the total revenue, and उसी revenue का 10% will actually become the profit, right? Because profitability is actually defined as the revenue, right? So if I actually go ahead and write the revenue in this particular table itself, and suppose 15,000, 20,000, 30,000 and 25,000 को suppose हम k लेते हैं, let's say 15,000 is 15k suppose. So we can actually write the revenue as 0.4x into 15k, right? Similarly यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25x into 20k. Similarly यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.15x into 30k. और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2x into 25k, right? So these are the revenues. And profitability के बारे में अगर बात करोगे in 2016, we can also calculate that. So this is 10% of this number, this is 30% of this number, this is 40% of this number, and this is 30% of this number, right? We can actually go ahead and write this, but let's further read और क्या दिया हुआ है हमारे पास. So in 2017, now we are actually talking about 2017, an year later, right? In 2017, the sales volume of the entry-level smartphones grew by 40% as compared to that in 2016. So 2016 में अगर हमारा total हमने X suppose किया था, so in 2017 that X will actually grew by 40%. So अगले साल actually total कितना हो जाएगा X into 1.4X, right? 40% of 40% का growth over X, so X into 1.4, 1.4X. Then CXQI offered a 40% discount on its unit selling price, right? So 30,000 actually changed, yeah, dropped by 40%. So 12,000 इसका कम हो जाएगा. So कितना हो जाएगा ये 18,000 हो जाएगा, right? Which resulted in a 15% increase in market share. तो पहले हमारा CXQI का कितना था 15% था, तो अब वो 15% बढ़ा हुआ दिखेगा, that is 30% market share हो जाएगा, ठीक है, as a result of that. And each of the other two brand lost 5% market share. तो सबका 5 कम हो जाएगा. So this will become 35, this will become 20, and this will become 15. However, the profitability of 6QI came down to half its value in 2016. So profitability क्या हो गया हमारा कम हो गया, और कितना हो गया, it came down to half of its value in 2016. And the unit selling prices of other three brands and their profitability values remained the same in 2017 as they were in 2016. So unit selling price बाकी तीन का और profitability बाकी तीन का भी क्या रहा, सेम रहा. सिर्फ चेंजेस किसके आए, CXQI के. Now, to deal with 2017, we need to actually make a table, right? So let's get down to making that table. So again, we have A, B, C, D.
राइट. नाउ इफ आई राइट द मार्केट शेयर ऑफ दीज फोर कंपनीज, सो मार्केट शेयर में क्या हुआ था हमारा, सी एक्स क्यू आई का 15 बढ़ गया था और बाकी दोनों 5 5, बाकी तीनों 5 5 5 कम हो गए थे. सो दिस वॉज वॉट, सपोज 1.4x लिखा है, सो मार्केट शेयर दिस वुड बी वॉट 35%. राइट, 35% में है. यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%, 5 5 5 कम, इसका हमारा 15 इंक्रीज हुआ था, सो दिस went up to 30 and this again came down by 5, so this is 15%. और ये परसेंट किसके कैलकुलेट होंगे, 1.4x के. राइट. So you can also write that market share चाहो तो. So this is 1.4x into 35, right? Yeah, into 0.35 actually, 35% of that number. So into 0.35, right? Into 0.35. Similarly यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.4x into 0.2. यहाँ पे 1.4x into 0.3. यहाँ पे 1.4x into 0.15. So that is a market share. Then यूनिट सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ए बी और डी का सेम रहा, बट सी एक्स क्यू आई का हमारा 40% का डिस्काउंट हुआ था. सो कितना हो गया था, 4 3 12 कम हो गया था. सो दिस इज 18,000. 18K लिख लेते हैं एंड द रिमेनिंग रिमेन सेम, सो 15K, 20K एंड देन वी हैव व्हाट 25K. राइट. एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सी एक्स क्यू आई केम डाउन टू हाफ इट्स वैल्यू इन 2016. सो प्रॉफिटेबिलिटी हमारा पहले 40% था, अब कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा. सो 20% यहाँ पे, वाइल द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर थ्री ब्रांड्स एक्चुअली रिमेन सेम. तो प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम रहा. सो दिस इज 10%, दिस इज 30%, दिस ड्रॉप टू हाफ एंड दिस बिकेम अगेन 30%. राइट. सो अगर हम यहाँ से चाहें तो फिर से रेवेन्यू एक्चुअली में कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द रेवेन्यू. सो दिस इनटू दिस वुड बी द रेवेन्यू, दिस इनटू दिस वुड बी द रेवेन्यू, दिस इनटू दिस वुड बी द रेवेन्यू एंड दिस इनटू दिस वुड बी द रेवेन्यू, एंड उसी रेवेन्यू का 10% वुड बी द प्रॉफिट्स. राइट. सो आई फर्स्ट टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम्स कि मेरे को क्या क्या जरूरत है कैलकुलेट करने की. इफ नीडेड आई एक्चुअली गो एंड कैलकुलेट दैट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ब्रांड दैट हैज द हाईएस्ट रेवेन्यू इन 2016. तो 16 का टेबल तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है. सो ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन 2016. सो रेवेन्यू इन 2016 मैक्सिमम कितना था, तो एक्स और के को छोड़ दो, सिर्फ ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो. जैसे यहाँ पे 15 इंटू 4 कितना हो गया हमारा, 60 हो गया. ठीक है. यहाँ पे जैसे 15 इंटू 4 60, राइट. सो 6 बन जाएगा एक तरीके से. यहाँ पे 20 इंटू 2.5, राइट डाउन द नंबर्स यहाँ पे, सो इट विल बी क्लियर. सो अगर आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, 0.4 इंटू 15 करा है मैंने, सपोज दिस इज 6. देन 20 इंटू 0.25 करा है, 20 इंटू 0.25, सो दिस इज 2.5 इंटू 2, दैट इज 5. देन यहाँ पे 30 इंटू 0.15, सो 1.5 इंटू 3, दैट इज 4.5. और फाइनली यहाँ पे 25 इंटू 0.2, 25 इंटू 0.2 इज 5. सो क्या पूछा था, द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन 2016. सो हाईएस्ट रेवेन्यू वुड बी Azra, that is option C. नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2016. सो प्रॉफिट हमने को कैलकुलेट करना है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट हुआ है. सो हम क्या काम करते हैं, ये रेवेन्यू के नंबर्स को 6 5 4.5 और 5 ही रख लेते हैं. हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका 10% निकाल लेते हैं. सो 10 इंटू 6 तरीके से 0.6 हो गया. 30 इंटू या 10% ऑफ 6.6 हुआ ना. सो 30% ऑफ 5 कितना हो गया, 1.5. यहाँ पे कितना हो गया 40% ऑफ 4.5, 40% ऑफ 4.5, ऑब्वियसली ये हायर नंबर होगा इन दोनों से डेफिनेटली. एंड 30% ऑफ 5, तो ये भी 1.5 ही हमारा डेफिनेटली आने वाला है, ये दोनों सेम ही था. राइट, 1.5. सो ऑब्वियसली दिस इज द हाईएस्ट. सो द ब्रांड दैट आर द हाईएस्ट प्रॉफिट वैल्यू वाइज इन 2016, दैट हैज टू बी CXQI. Right, now let's go to the third one. Now the third and the fourth are actually related to the 2017 values. So third में क्या पूछता है, the brand that had the highest profit in 2017. Right, so highest profit in 2017. तो ये actually calculation कैसा होगा, ये हमारा total revenue था, मतलब ये total हमारा क्या था, number of smartphones था, that into 15 and into 10%.
ये वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जहाँ पे आएगी वो चीज़ अपने को कैलकुलेट करना है. सो आई विल जस्ट क्विकली ऑब्जर्व कि कहीं पे हम क्या बेसिक कंपैरिजन कर सकते हैं क्या. आई जस्ट क्विकली कैलकुलेट, मतलब हम कहीं पे कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, क्योंकि सब में नोटिस करो ये 1.4 1.4 1.4 1.4 तो वैसे भी आपका सेम ही है. सो आई जस्ट क्विकली ऑब्जर्व दीज वैल्यूज, मतलब यहाँ से यहाँ तक, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस. अगेन सिर्फ इनको क्यों देख रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली में जो हमारा प्रॉफिट है अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैसे आएगा, 1.4x into 0.35, that is the number of smartphones into 15,000, that will be the total revenue and उसका 10%. So ultimately this into this into this into this calculate होना है. ये चारों में हमारा 1.4x तो कॉमन ही है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ हम इन नंबर में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे. राइट अब आप इनमें भी कंपेयर करना चाहोगे तो आप परसेंट को भी छोड़ सकते हो, राइट, बिकॉज हम में ही परसेंट है तो उसको आप 10 की तरह ट्रीट कर सकते हो. ठीक है, 10 के ही तो उसको ट्रीट कर सकते हो. 10 भी अगर आप नहीं लेना चाहते हो आप इसको 1 3 2 3 भी ले सकते हो, राइट, 1 3 2 3, बिकॉज अल्टीमेटली जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे मैक्सिमम होगा वही हमारी ओवरऑल वैल्यू भी मैक्सिमाइज होगी. तो जैसे 0.35 इंटू सपोज मैंने 10 ही रखा, तो 3.5 इंटू 15, राइट. सो पहला वाला 3.5 इंटू 15 कुछ आया. ठीक है, 3.5 इंटू 15,000 भी छोड़ दो. सिर्फ नेक्स्ट वाला फिर हमारा 30%, तो 30 इंटू 0.2 करा, 30 इंटू 0.2 करा तो 6 हो गया, 6 इंटू 20 कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट 0.3 इंटू 20, दैट इज अगेन 6, राइट. 0.3 इंटू 20 दैट इज 6 इंटू 18 हुआ. एंड फाइनली 30 इंटू 0.15, सो 3 इंटू 1.5 दैट इज 4.5 इंटू 25, 4.5 इंटू 25. अब इसमें क्या चेक करना था, हाईएस्ट चेक करना था. सो ये 15,345 और 15,575. सो ये तो बहुत कम है हमारा, 45 50 के रेंज में कुछ आएगा, छोड़ दो इसको. दिस इज डेफिनेटली एलिमिनेटेड. 6 इंटू 20 इज ऑब्वियसली हायर दैन 6 इंटू 18, तो ये भी एलिमिनेटेड है. करेंटली दिस इज द हाइएस्ट. एंड 4.5 इंटू 25 करोगे तो 100, और 25 125 12.5, तो 112.5 आएगा, बट ये हमारा 120 है, तो डेफिनेटली हमारा हाईएस्ट कौन सा आया, ऑप्शन बी, दैट इज स्पाइसी. राइट नाउ finally the fourth one, the complete list of brands whose profits went up in 2017 from 2016 is. So हमें अब क्या करना है, हमें पूरा एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, राइट, कि 17 एज कम्पेयर टू 16 हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे मैक्सिमाइज हुआ है, राइट. सो इसके लिए हमें पूरी कैलकुलेशन एक बार जल्दी से चेक कर लेनी चाहिए. सो जैसे 0.6 1.5 यहाँ पे सब तो था ही हमारा. ठीक है, एक्स और के ये सब हमने इग्नोर कर ही दिया था. तो 0.6 1.5, ठीक है, बस हमें चेक करना है कहाँ कहाँ हमारा एक्चुअली में इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट. सो 0.6 1.5 ये वाला हमारा कितना था, सो दिस वॉज 4.5 इंटू 40%, राइट, 4.5 इंटू 40%. तो 0.4 से मल्टीप्लाई करना है 4.5 को, कितना आएगा, 0.4. सो 0.4 इंटू 4.5, 4 4 16, 160, 4 5 20, 180, और 1.8. सो दिस इज 1.8. अब बस मुझे चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारा इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है. तो इसमें हमने 1000 इग्नोर किया हुआ है. ठीक है, क्लियर, इसमें हमने 1000 इग्नोर किया हुआ है. 1.4, राइट. सो यहाँ पे हमने क्या इग्नोर किया हुआ था, दिस एक्स एंड बेसिकली दैट के हमने इग्नोर किया था. तो यहाँ पे अगर आप एक्चुअली में कैलकुलेशन चेक करोगे तो कैलकुलेशन कैसे आपका आएगा. सो जैसे यहाँ पे 1.4 लेना पड़ेगा, 1.4 इंटू 0.35 इंटू 15, और इंटू कितना 0.1, दैट 10% का, राइट. सो ये वाली कैलकुलेशन. तो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट दिस. सो यहाँ पे जैसे 1.4 इंटू 0.2 इंटू 20 इंटू 0.3, सी में 1.4 इंटू 0.3 इंटू 18 इंटू 0.2, और डी में हमारा 1.4 इंटू 0.15 इंटू 25 इंटू 0.3. सो दैट इज द वे विल बी एबल टू कैलकुलेट. कैलकुलेटर हमारे पास है ही, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. दिस इज द मोस्ट कैलकुलेटिव वन. And I'll just quickly write down the values. I've already calculated this. So this will turn out to be approximately profit अगर मैं लिखूं, just erase this, right. So this will be approximately 0.73,
This will be approximately 1.68. Again, I have already calculated this value. So 1.68 approximately, यहाँ पे हमारा 1.512 approximately, यहाँ पे हमारा approximately 1.57. So now we simply have to compare कि कितने ब्रांड्स में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है. So 0.6 से 0.73 इसमें हुआ, 1.5 से 1.68 इसमें इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 1.8 से 1.512 डिक्रीज हो गया. सो इसमें काउंट नहीं करेंगे. 1.5 से 1.57 इसमें भी डेफिनेटली इंक्रीज हुआ. सो फॉर द ब्रांड्स ए बी एंड डी देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स. सो ए बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन डी, राइट. So a simple set, a purely calculative set from CAT 2018. I hope you understood this. Someone also requested this set a few days back. I hope that person got the set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. And just one more information. We have already started off with this CAT 25 batch, a complete full-fledged, complete preparation batch. So if you want more details and you want to enroll in this batch, or you want to join the free sessions that we're holding for this particular batch, you can check out the details in the description. Thank you. Bye. Have a good day.